Yeah, I can see the screen. राइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पिछली क्लास में हमने बात की थी अबाउट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो कि प्लांट्स में होती है कि अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को आपस में कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर स्टेम को रूट से कम्युनिकेट करना है या लीव्स को स्टेम से कम्युनिकेट करना है, तो फिर कम्युनिकेशन के मेथड्स भी होने चाहिए। एंड वन ऑफ दोज वी लुक्ड एट वाज इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन इन्वॉल्व थी, और ये एक्शन पोटेंशियल प्लाज्माडेस्माटा के अक्रॉस जाता था। इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जांपल लिया था, और हमने इसकी सारी फीचर्स के बारे में बात की थी, कार्निवोरस प्लांट्स, इसके लीव्स का जो स्ट्रक्चर है और ये काम किस तरीके से करता है, एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। सो वर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क? Describe the closure of the Venus flytrap. Yeah. So could you send me a picture of it? हम उसको check करते हैं, then we'll move forward. If you have written it down somewhere, or if you want to speak it out, कोई भी तरीका. Yeah, sir. Just a second, I'm sending the picture. Yeah. All right. Yeah, sir. Send it. Also, sir, I think in this answer I Yeah. got mixed up with some things I've learned in school. So, could you just tell me Hmm. which things are included in our syllabus and which are not? सही। So let me just check. The insect causes the stimulation of the sensory hair. If two hairs are touched within 20 to 30 seconds, then the trap shuts. Can also be the same hair twice. And then the time between the stimulus and the response is 0.5 seconds. You could include this. Yeah, not really. It's a point in the syllabus. लेकिन AVP का इसमें point आ सकता है, any valid point का, because it's a valid point, but it's not really that important. कि रिस्पॉन्स हमें पता ऑलरेडी होने वाला है, ऑल वी नीड टू नो इज स्टिम्युलेशन किस तरीके की होनी चाहिए जिसकी वजह से रिस्पॉन्स हमें आएगा। Okay, now touching of sensory hairs causes depolarization of the cell membrane of the cells in the sensory hair, resulting in action potential. बिल्कुल सही है, we learned this. Action potential spreads along the cells. Action potential in the hinge cells at the midrib causes the trap to shut. अच्छा, ये वाला जो point है, I don't think this is necessary at all. I have the syllabus in front of me.
मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, ताकि एक चीज यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेशन चैप्टर 15, राइट, ये रहा। सो इन दी सिलेबस वीनस फ्लाई ट्रैप का उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, एंड आई रीड आउट दिस पॉइंट। डिस्क्राइब द रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप to the stimulation of hairs on the lobes of the modified leaves and explain how the closure of the trap is achieved. तो all we have to explain is stimulation कैसे होती है, sensory hairs touch होना या कितनी बार टच होना, कितने सेकंड्स में, उसके बाद ये क्लोजर अचीव कैसे होता है कि एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन और ट्रांसमिशन। अब कौन सा सेल ट्रांसमिट होता है एक्शन पोटेंशियल के सेल को, नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। ओके, सेम थिंग, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द लोब सेल्स, पंप H प्लस आयंस, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, even the non-covalent bonds in this. Right. Ca2 plus ions move into the cells to cover the H plus ions loss, followed by osmosis of water into these cells. Cells become turgid and expand. This is called acid growth hypothesis. Ca2 plus ions stimulate the exocytosis of vesicles containing digestive enzymes. ये वाले point में the only important point is exocytosis होना, क्योंकि Ca2 plus enzymes का जो main काम है वो वही है जो साइनेप्टिक नॉर्म पे था, और वो है स्टिम्युलेशन वेसिकल्स की। अब ये जो चीजें हो रही हैं, दीज आर सिंपली बाय कॉन्सिक्वेंस। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस में हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बनता था? व्हाट वाज द बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस? Yes, sir, I'm so sorry I got disconnected. My laptop suddenly shut down. It's fine, it's fine. So, where did you hear me tell? मतलब till Uh, speaking? नहीं, जितना मैंने भी बताया था कि the school thing got mixed up until then, and then I did not hear anything. Like I did not hear your reply after. Okay, so let me, I was reading this through and मैंने ये भी कहा था कि like this first, let's look at this again, the first picture. Insect causes the stimulation of the sensory है, ये बिल्कुल सही है। Time between the stimulus and the response is 0.5 seconds. अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि response का time कितना लगता है। What's more important is कि स्टिम्युलेशन किस तरीके से होती है विच लीड्स टू द रिस्पॉन्स। अच्छा, मेरे सामने सिलेबस खुला हुआ है एंड वीनस फ्लाई ट्रैप के लिहाज से दे हैव जस्ट गिवन वन पॉइंट एंड दैट इज डिस्क्राइब द रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप टू stimulation of hairs on the lobes of the modified leaves and explain how the closure of the trap is achieved। तो हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करनी है, स्टिम्युलेशन कैसे होती है और किस तरीके से होती है, एंड दूसरी चीज क्लोजर किस तरीके से अचीव होता है। और हमें टाइम भी नहीं बताना रिस्पॉन्स का, बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड रैपिड इन प्लेस ऑफ दैट। ओके, बट अगेन इफ यू कुड इंक्लूड दिस पॉइंट, दिस इज अ गुड पॉइंट। ये एवीपी में आ सकता है, एनी वैलिड पॉइंट, लेकिन क्या ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। ओके, touching of the sensory hair causes depolarization of the membranes of the cells in the sensory hair, resulting in generation of action potential। सही है।
spreads along the cells of the leaf. अच्छा, अब ये जो मिडरिप वाला पॉइंट है, हाइड्रोजन आयंस वाला पॉइंट है, पीएच वाला पॉइंट है, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है, दिस इज वेरी वेरी डिटेल्ड। और ये सब जो चीजें हैं ना, दीज आर अ बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैल्शियम आयंस मूविंग इनटू द सेल्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बाय कॉन्सिक्वेंस? जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, व्हाट वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? Could you repeat? What was the byproduct of photosynthesis? Oxygen? ऑक्सीजन। जिस तरीके से उस केमिकल रिएक्शन का एक बाय प्रोडक्ट था या एक साइड प्रोडक्ट था विच वी डिड नॉट वांट, लेकिन वो हो रहा था, द सेम केसेस फॉर दिस, कि कैल्शियम आयंस जब मूव इन करते हैं तो प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस भी होती है। ऑल ऑफ दीज लीड टू द फाइनल प्रोसेस एंड दैट इज कि हमारा वेसिकल्स की स्टिमुलेशन होती है। दैट इज व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट, कि द सेम थिंग हैपनिंग इन द सिनेप्टिक नर्व्स, दिस इज द सेम थिंग व्हिच हैपेंस हियर। और वन मोर थिंग, इवन दो यू कुड इंक्लूड दिस, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल याद रखने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि द एंटायर सिलेबस इज सो एक्सटेंसिव इंक्लूडिंग चैप्टर्स 18 एंड चैप्टर 19, वो तो इतने लंबे हैं कि how many things can you technically remember at once? तो the more we are minimizing and the more we are keeping it to a certain level, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर if you're able to memorize this और कोई ऐसा सवाल आ जाता है 4 या 5 मार्क का, then this is perfect, you can include that। लेकिन कभी भी वीनस फ्लाई ट्रैप का 2 से 3 मार्क्स से ज्यादा का सवाल आता ही नहीं। Okay, there's a change in shape of the leaf. This is correct. The leaf shut, the hair interlock, the insect is trapped, the leaf remains shut for up to a week. Again, the last point, really not important. सिर्फ एंड में ये बताना है कि leaf completely close कर जाता है। Does that make sense? Yeah, it does. सही। तो let's move on from this topic. अच्छा, अब plants electrical communication तो करते ही हैं। और अच्छा, इवन बिफोर दैट लेट्स टॉक जस्ट वन मोर थिंग अबाउट अ वीनस फ्लाई ट्रैप, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वाले ही टॉपिक में, एंड दैट इज द अडेप्टेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप। कि जो आखिरी पॉइंट मैंने बोला था पिछली क्लास में, कि वीनस फ्लाई ट्रैप इतना स्पेसिफिक क्यों सिलेबस में ये प्लांट चूज किया, मतलब व्हाई इज इट सो स्पेशल? वीनस फ्लाई ट्रैप में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, ऐसी क्या फीचर्स हैं which makes it special for every single thing which we have studied so far? मतलब why can't a sunflower plant close but not completely close due to sensory air की stimulation? Why just a Venus flytrap? तो उसकी 2 adaptations हैं which we need to know about। सबसे पहली adaptation, you remember हमने वो 3 stages किए थे वीनस फ्लाईट्रैप के। Yeah. So the first stage was कि insect आता है, it sits on the convex leaves and then or the bulging leaves in fact, और फिर वहां पे आके वो sensory hair की stimulation करता है। स्टेज नंबर 2, इस सेंसरी हेयर की स्टिमुलेशन अगर 2 हो जाती है, 2 सेंसरी हेयर स्टिमुलेशन विद इन 20 to 35 seconds, तो फिर होती है ट्रैप क्लोज बट नॉट कंप्लीटली। और फिर तीसरे स्टेज में ये ट्रैप कंप्लीटली क्लोज होती है। लेकिन why can't we just go from stage 1 to stage 3? Why can't we say कि इंसेक्ट सेंसरी ईयर को स्टिमुलेट करेगा जितने हमें सेंसरी ईयर्स को करना था विद इन 20 to 35 seconds, और फिर वो कंप्लीटली क्लोज कर जाएगा? Why do we want it to partially close? The reason is in order to prevent accidental stimulation from taking place. Now imagine this. वीनस फ्लाई ट्रैप तो प्लांट है, और प्लांट बाहर सराउंडिंग्स में ग्रो होता है, इट्स नॉट इन दी इंडोर्स, आउटडोर्स वो ग्रो होता है। सपोज इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर और लेट्स से अ स्मॉल लीफ फॉल्स ऑन द वीनस फ्लाई ट्रैप, अगर पानी का एक ड्रॉप या एक छोटा सा लीफ का एक पीस वीनस फ्लाई ट्रैप पर गिरेगा, वुडंट दैट आल्सो कॉज वन सेंसरी हेयर टू बी स्टिमुलेटेड? Yeah. वो भी वन सेंसरी हेयर को स्टिमुलेट कर देगा। तो हम क्यों ये कंडीशन रखते हैं कि 2 सेंसरी हेयर्स की स्टिमुलेशन होनी चाहिए विद इन 25 to 30 seconds एंड नॉट जस्ट वन? बिकॉज अगर हम ये कंडीशन नहीं रखते तो कोई ड्रॉप ऑफ वाटर भी इस वीनस फ्लाई ट्रैप को क्लोज करवा देता। दिस वुड मीन कि एक्सीडेंटल स्टिम्युलेशन बार बार फ्रीक्वेंटली होती रहती। एंड द प्रॉब्लम विद एक्सीडेंटल स्टिम्युलेशन इज
कि इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ एटीपी, क्योंकि ऑब्वियसली वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो रहा है, वो मूव कर रहा है, इट्स अ कंप्लीट प्लांट और अ लीफ ऑफ द प्लांट विच इज मूविंग, तो एटीपी तो रिक्वायर्ड है उसमें। इस एक्सीडेंटल स्टिमुलेशन की वजह से इंसेक्ट तो कोई भी नहीं है अंदर, लेकिन वो बार बार एटीपी को यूज करता रहेगा और वो बंद होता रहेगा। सो दिस इज वन रीजन व्हाई हमने ये कंडीशन रखी कि दो सेंसरी ईयर की स्टिमुलेशन होनी चाहिए, नॉट जस्ट वन। ये तो थी पहली अडेप्टेशन। तो इस एक्सीडेंटल स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए और प्रिवेंट करने से इट लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एटीपी, तो हमने एटीपी को कंजर्व करवा लिया। अच्छा, अब एक और भी रीजन है, विच इज वाई स्टेज 2 नेचर ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि ट्रैप पहले पार्शियली क्लोज होगा, फिर कंप्लीटली क्लोज होगा, एंड नॉट डायरेक्टली कंप्लीटली क्लोज होगा। वो इसीलिए, सो इमेजिन दिस नाउ, सपोज एक इंसेक्ट ही है इस बार, लेकिन इट्स अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट जो अब वीनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर बैठ गया, दो सेंसरी ईयर को स्टिमुलेट भी कर चुका है, और अब वीनस फ्लाई ट्रैप स्टेज 2 में आ गया। वो पार्शली क्लोज होता है, बट रिमेंबर इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल इंसेक्ट। क्या वो उस गैप बिटवीन द टू लीव्स के बीच में से पास कर जाएगा? Yeah, it will. It will. So it will, this partial closure of the Venus flytrap will allow for very small insects to escape the flytrap. Now, this is very smart. The reason is, अगर हम इस छोटे से इंसेक्ट को एस्केप ना करने देते, तो हमें इस वेरी स्मॉल इंसेक्ट के लिए इतना ज्यादा एटीपी यूज करना पड़ता। वुड दैट बी वर्थ इट? इट्स सच अ स्मॉल इंसेक्ट, उसमें से इतना ज्यादा तो हमें फूड मिलेगा ही नहीं वीनस फ्लाई ट्रैप को। No, it won't be. It won't be worth it. So this is a very smart play जो वीनस फ्लाईट्रैप करता है कि it closes partially, ताकि जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं जिनसे ज्यादा खाना या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने, वो तो एस्केप कर जाए, और एटीपी भी जाया नहीं होगा इन ऑर्डर टू मेक इट कंप्लीटली क्लोज। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना, एवरी सिंगल स्टेप रिक्वायर्स एटीपी। सो सेकेंड फीचर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द वीनस फ्लाईट्रैप partially closes before completely closing to allow the small insects to escape. और जब स्मॉल इंसेक्ट्स एस्केप कर जाएंगे, इट विल हेल्प द वीनस फ्लाईट्रैप, एसेंशियली हेल्प करेगा, क्योंकि अब उसको एक छोटे से इंसेक्ट के लिए एक ज्यादा एटीपी यूज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इमेजिन दिस, इफ इट्स अ स्मॉल इंसेक्ट, इफ इट्स अ वेरी बिग इंसेक्ट, द वीनस फ्लाईट्रैप तो सेम अमाउंट ऑफ एटीपी यूज कर रहा है। एटीपी तो वो तब यूज कर रहा है ना जब उसको खाना भी ज्यादा मिल रहा हो। अब वो उतनी एटीपी एक छोटे से अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज कर रहा है, दैट इज नॉट वर्थ इट फॉर द वीनस फ्लाईट्रैप। Since digesting a small insect by using ATP, so सारा जो मेन मसला है वो एटीपी की कंजर्वेशन का is not profitable, or you could say it's not worth it. The fly trap would prefer to use ATP when there is a larger insect to digest. Okay, so that is it for एक Venus flytrap. And with that, sorry, with that हमने इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को कवर कर लिया कि प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन आखिर किस तरीके से होता है। वन मोर टॉपिक इन दिस चैप्टर वी आर लेफ्ट विद इज केमिकल कम्युनिकेशन इन
plants. अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम किसी स्पेसिफिक प्लांट की एग्जांपल ही लेंगे. वी विल बी टॉकिंग इन जनरल अबाउट एवरी प्लांट, और उसमें हम देखेंगे कि केमिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो अगर तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन थी तो एक्शन पोटेंशियल्स इन्वॉल्व थे. केमिकल कम्युनिकेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? Hormones? करेक्ट. केमिकल कम्युनिकेशन में हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होंगे. जस्ट लाइक हम उसकी बात कर रहे थे व्हेन वी वर लुकिंग एट चैप्टर 14, व्हाट वाज द प्लांट हार्मोन वी लुक्ड एट, जो कि स्टेम इलोंगेशन, सॉरी, जो कि वाटर स्ट्रेस में काम आता है. Abscisic acid? Correct, abscisic acid. That is also an example of chemical communication in plants, because chemical communication मतलब कि different parts और different structures of the plant को आपस में communicate करने के लिए chemicals की जरूरत पड़ती है या hormones की जरूरत पड़ती है. So the hormones which you have to know about is first one, abscisic acid. ये हम already देख चुके हैं. This is used by the plants ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस. तो एब्सिसिक एसिड का काम ही ये था कि जब वाटर स्ट्रेस होता है तो जो प्लांट का स्टोमेटा है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है कंपेयर टू अगर प्लांट का स्टोमेटा नॉर्मली क्लोज होने की कोशिश करे. सो बोथ ऑफ दीज आर टेक्निकली द सेम थिंग. स्टोमेटा यहाँ भी क्लोज हो रहा है, यहाँ भी क्लोज हो रहा है. पहली सिचुएशन में स्टोमेटा नॉर्मली क्लोज हो रहा है, दूसरी सिचुएशन में वाटर स्ट्रेस है. तो हम every single drop of water को conserve करना चाह रहे हैं. So we want the stomata to close more quickly than normal, जिसके लिए ABA use होता है. And we talked about this in chapter 14. Today what we're going to be looking at is the two more hormones. That is auxin, and number three is gibberellins or gibberellins. इसकी अलग अलग pronunciations हैं. Whatever you would want to use, हमें तो सिर्फ इसकी थ्योरी में स्पेलिंग आनी चाहिए. अच्छा, have you heard about auxin in IGCSE? Do you remember any part of that? Yeah, a bit like it helps in like cell elongation. It helps in cell elongation. बिल्कुल सही. Plants में the cell which is needed to be elongated with the help of auxin is the stem का cell. इसीलिए हम कहते हैं कि auxin causes stem elongation. Now you're right. It causes cell elongation, लेकिन कौन सा सेल? स्टेम का सेल. इसलिए टेक्निकली causes stem elongation. अच्छा, अब ये जो गिबरेलिन्स हैं, they also cause stem elongation, but that is only one of their functions. गिबरेलिन्स का एक और फंक्शन भी है, and that is to cause seed germination. तो हमें ये तीन फंक्शंस देखने हैं कि हाउ डू दीज हार्मोन्स एक्चुअली कंट्रोल देम, स्टिम्युलेट देम, ट्रिगर देम, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं. मतलब हार्मोन्स इन तीन फंक्शंस में यूज कहाँ होते हैं. दैट्स ऑल वी हैव टू लुक एट. तो सबसे पहले तो लेट्स फर्स्ट टॉक अ बिट ऑफ एन ओवरव्यू अबाउट कि स्टेम इलोंगेशन जनरली होती किस तरीके से. नाउ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ in order to represent a stem. So just imagine for a second this is a stem. अब इस stem में what I'm gonna do is I'm gonna make some cells. Okay, so how many cells do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. स्टेम को अगर हमें elongate करवाना है, मतलब हमें अगर इसकी ओवरऑल लेंथ को बढ़ाना है, हम दो चीजें कर सकते हैं, और या दो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं. इनमें से एक चीज हम करेंगे. नाउ यू आर गोना टेल मी व्हाट इट इज. सबसे पहले तो डू वी इंक्रीज द साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स जो कि ऑलरेडी मेच्योर पेरेंट सेल्स हैं, या नंबर टू हम नए सेल्स बना के उन छोटे सेल्स की साइज बढ़ाएं ताकि ओवरऑल लेंथ बढ़ जाए. ऑप्शन वन और ऑप्शन टू. We can increase the length. So you're saying increase the length of the existing cells, right? Yeah. लेकिन ये बट नोटिस दिस,
ये सारे सेल्स जो हैं मेच्योर सेल्स हैं, ये पेरेंट सेल्स हैं। सेल्स की दो लाइफ की स्टेजेस होती हैं, एक जब वो न्यूली प्रोड्यूस होता है और एक जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। जब वो न्यूली प्रोड्यूस होता है तो फिर उसकी साइज हम बढ़ा के नॉर्मल पे ला सकते हैं। लेकिन अगर वो अब एक नॉर्मल साइज सेल बन चुका है, कैन वी इंक्रीज दिस एनी मोर? इजंट इट ऑलरेडी मेच्योर? Oh, yeah, we can't. वी कांट। देयरफॉर थियोरेटिकल तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ करके इसकी साइज बढ़ा दें, बट दैट वुडंट बी पॉसिबल विदाउट मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और केमिकल्स और वो सब करना। हम तो इसमें नेचुरल केमिकल कम्युनिकेशन देख रहे हैं ना प्लांट्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। तो नॉर्मली स्टेम इलोंगेशन करवाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, दैट इज माइटोसिस, which in other words is सेल डिवीजन का एक टाइप। अब इसमें क्या होता है कि यू हैव वन पेरेंट सेल विच गिव्स राइज टू, मतलब प्रोड्यूस करता है टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यहाँ पे ये सेम चीज कॉपी करूंगा, आई एम गोना पेस्ट दिस हियर एंड लेट्स जस्ट इरेज दिस स्टफ। ओके, नाउ होगा ये कि अब ये सारे सेल्स डिवाइड कर जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। नाउ टेल मी दिस, when the cells abhi when they are newly produced, are the cells going to have the same size as the parent cell? No. No, क्योंकि वो अभी अभी प्रोड्यूस हुए, they're gonna take time in order to increase their size, और वो भी naturally। तो यहाँ पे पहले हमारे पास इतने सेल्स थे, अब नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास जो है बढ़ गए। अब ये इंडिविजुअल सेल्स साइज में इंक्रीज करेंगे एंड इवेंचुअली हम एक बड़ा स्टेम क्रिएट कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ हमने स्टेम इलोंगेशन का प्रोसेस किया। लेट मी जस्ट कंप्लीट द डायग्राम ऑफ द स्टेम। सो ऑल वी डिड इज टू स्टेजेस। सबसे पहले माइटोसिस किया ताकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा सकें, और फिर एवरी इंडिविजुअल सेल को ग्रो करने दिया। अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड cell elongation, which you said in the beginning. ऑक्सिन जहां पे काम आता है इस पूरे स्टेम elongation के प्रोसेस में इज दिस पार्ट राइट है, सेल elongation। और अभी हम देखेंगे कि ऑक्सिन टेक्निकली यहाँ पे काम किस तरीके से आता है, राइट। एंड इवन नॉट जस्ट ऑक्सिन, इवन गिबरेलिंस, राइट, सी दिस causes stem elongation, gibberellins भी causes stem elongation। तो यहाँ पे ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस का यूज होता है। सो ऑक्सिन and gibberellin are used here. Okay, let's first talk about ये पहला टॉपिक, ऑक्सिन एंड स्टेम elongation। अब उससे पहले मैं यहाँ पे एक पिक्चर पेश करता हूँ फ्रॉम योर बुक, क्योंकि इफ यू हैव अ डायग्राम इट विल बी मच मच मोर easier फॉर यू टू अंडरस्टैंड। गिव मी अ सेकंड। राइट, दिस इज अ पिक्चर which I've taken from your book, the blue book। ये पिक्चर, नाउ आई वांट यू टू नोटिस कि इस पिक्चर में चल क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये सेलुलोस माइक्रोफाइब्रिल्स हैं प्लांट सेल वॉल की। हमारे पास ये पूरा सेल सरफेस मेम्ब्रेन है जिसमें ये सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। नाउ पॉज दिस थॉट फॉर अ सेकंड राइट हियर एंड लेट मी आस्क यू दिस, अगर हमें सेल की साइज को बढ़ाना है, हम ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होता है और सेल वॉल तो बहुत एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। हाउ विल इट पॉसिबली अलाउ अस टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ईच इंडिविजुअल सेल? Maybe like breaking the cell wall and then elongating the cell and the cell wall that it can be replaced. बिल्कुल सही। सेल वॉल
के साथ हम किसी सेल को साइज में बड़ा कर ही नहीं सकते, बिकॉज द सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसमें सेलुलोज होता है जो कि प्राइमरी लेयर, यू वुड हैव लर्नड दिस इन एएस, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्शियरी लेयर, इतनी लेयर्स बनाता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है कि साइज हम पॉसिबली बढ़ा ही नहीं सकते। तो ऑल वी हैव टू डू इज, सबसे पहले तो इस सेल वॉल को वीकन करना है। जैसे ही हमने सेल वॉल को वीकन कर लिया, फिर जाके we will be able to increase the size of the cell, क्योंकि we have a weakened cell wall and then we can replace the cell wall. So this is the general process. Weakening of the cell wall, फिर elongation of the cell, और तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ सेल वॉल। हमारा मेन फोकस इन दो चीजों पे होगा कि सेल वॉल वीकन कैसे होता है और उस वीकनिंग के बाद सेल हमारा इलोंगेट कैसे होता है। राइट, नाउ दिस विल स्टार्ट टू मेक अ बिट मोर सेंस कि प्लांट सेल वॉल यहाँ पे क्यों मेंशन्ड है, क्योंकि हमें इसी को तो वीकन करना है। अब विद इस पिक्चर के नीचे मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक प्लांट सेल वॉल का। सो प्लांट सेल वॉल जनरली लुक्स लाइक दिस, कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आ गए, मेकिंग अप द प्लांट सेल वॉल, जो कि मैं ये डबल लेयर से बना रहा हूँ। सो दिस थिंग राइट हियर, दिस इज वन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, दिस इज अनदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, इस तरीके से। अच्छा, यू वुड हैव लर्न दिस इन एएस। कुड यू टेल मी कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं विच होल्ड देम टुगेदर? Glycosidic, I think. Glycosidic is in carbohydrates and cellulose is a polysaccharide, लेकिन इसके बीच में, इन माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ फॉर दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। तो सबसे पहले तो लेट मी राइट दिस डाउन आफ्टर ड्राइंग इट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स exist बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? ताकि ये सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स को जोड़ के रखें और दे वूंड अप टुगेदर टू फॉर्म अ सेलुलोज फाइबर। अगेन दिस इज एएस स्टफ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। ओके, ये तो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं विच यू विल हैव टू नो अबाउट। एक सेल वॉल में दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। वन ऑफ these स्ट्रक्चर्स इज समथिंग कॉल्ड एन एक्सपेंसिन प्रोटीन। इट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका नाम है एक्सपेंसिन। जब हम सेल वॉल को नॉर्मली देख रहे होते हैं, सो लेट्स से इफ यू टेक आउट अ प्लांट सेल एंड यू लुक एट इट इन अंडर अ माइक्रोस्कोप, यू लुक एट द cell wall under a microscope, you will find this expansin protein as dormant. Could you explain me dormant का मतलब क्या होता है? Active versus dormant में dormant क्या होता है? So does dormant means कि वो active नहीं है? Can we say that? Yeah. यस, तो ये एक्सपेंसिन प्रोटीन इस वक्त इनएक्टिव है। इफ यू आर नॉर्मली लुकिंग एट अ सेल वॉल, हमारे प्रोसेस में हम इसको एक्टिवेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। सो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ एन इनएक्टिव एक्सपेंसिन प्रोटीन। जस्ट डोंट राइट द वर्ड इनएक्टिव, क्योंकि बाद में वो खैर एक्टिवेट हो ही जाएगा। सो यू कैन राइट सेल वॉल कंसिस्ट of an expansin protein. Now it's not just one, बहुत सारे expansin protein के molecules होते हैं। Now, hydrogen bonds are not the only bonds which exist between microfibrils. There are other bonds as well. One of these is called hemicellulose. ये बॉन्ड का शेप या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, you have a U shape right here, you have a U shape right here, and both of these are joined together.
तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं द इंटायर थिंग, इट्स कॉल्ड हेमीसेलुलोज। दैट्स नंबर टू। लास्ट, देर आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि इस सेल वॉल के अंदर होता है, एंड दिस इज द XET enzyme. So for now, just remember the names of all of these structures: hydrogen bonds, expansion protein, hemicellulose, and फिर आखिरी चीज XET enzyme. अच्छा, सेल वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है। सेल मेम्ब्रेन में इन तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। सो एवरीथिंग विच आई जस्ट लिस्टेड ऑन राइट हियर इज प्रेजेंट राइट हियर, इस रेड से मार्क करी वाली रीजन में। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, एंड देन वी हैव सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वी हैव द ऑक्सिन रिसेप्टर, वी हैव प्रोटॉन पंप्स, वी हैव पोटेशियम आयन चैनल्स, एंड वी हैव aquaporins. Now, have we learned this combination of transport proteins किसी और चैप्टर में, किसी और टॉपिक में? प्रोटॉन पंप्स, पोटेशियम आयंस, एक्वापोरेंस। In homeostasis, होम्योस्टेसिस में कौन से टॉपिक में? selective reabsorption. नॉट रियली। सो हमने एक ट्रिक भी वहां पे देखी थी कि हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस हेट ईच अदर, एंड पोटेशियम आयंस एंड वाटर लव ईच अदर। यू रिमेम्बर दैट ट्रिक? तो वो कहाँ पे हमने देखी थी? Yeah, homeostasis in plants, I think. यस, गार्ड सेल्स के अंदर हमने ये देखी थी। तो यहाँ पे वी फाइंड द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के प्रोटॉन पंप्स भी है, पोटेशियम आयन चैनल्स भी हैं, एक्वापोरेंस भी है, एंड वन एक्स्ट्रा थिंग इज एन ऑक्सिन रिसेप्टर, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सिन। तो ऑक्सिन रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। नाउ अब देखते हैं कि ये प्रोसेस काम किस तरीके से करता है। स्टेप नंबर वन, ऑक्सिन जो मॉलिक्यूल है, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। सिंपल, क्योंकि इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए ऑक्सिन की जरूरत पड़ती है सेल इलोंगेशन को करने के लिए। सो ऑक्सिन बाइंड्स टू द ऑक्सिन रिसेप्टर। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री शेप्ड है, देन यू कैन राइट एवरी सिंगल थिंग, कॉम्प्लीमेंट्री शेप्ड, कन्फर्मेशनल शेप चेंज, एवरी सिंगल थिंग। ये ऑक्सिन रिसेप्टर स्टिम्युलेट करता है टू अदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, that is proton pumps and potassium ion channels. Now, when I say the word stimulate, I mean open. कि जब ऑक्सिन इस ऑक्सिन रिसेप्टर के साथ अटैच करता है, तो इट causes the opening of the proton pumps and the opening of the potassium ion channels. अब प्रोटॉन पंप्स, लेट्स टॉक अबाउट दीज प्रोटॉन पंप्स फर्स्ट। ये ओपन कर जाते हैं। जब ये ओपन करते हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द सेल वॉल। तो कुड यू टेल मी, पहले कहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी प्रोटॉन्स की? Was it in the cell wall or was it in the cytoplasm? In the cytoplasm. So aren't we going against the concentration gradient? It's a proton pump Oh, yeah, sorry, in the cell wall. इन द सेल वॉल। तो क्योंकि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहे हैं, मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन, पहले हाई कंसंट्रेशन सेल वॉल में थी, और ये प्रोटॉन पंप्स इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ऑक्सिन बाइंड्स टू द ऑक्सिन रिसेप्टर, द ऑक्सिन रिसेप्टर stimulates the proton pumps, causing them to open. अब जब एक बार ये प्रोटॉन पंप्स खुल जाएंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज H plus ions now move against the concentration gradient, or we can say H plus ions are actively transported into the cell wall from the cytoplasm. अच्छा, एक बार ये प्रोटॉन सेल वॉल के अंदर चले गए, could you tell me what is going to happen to the
pH of the cell wall? It decreases. It decreases. बिल्कुल सही. pH is a measure of how many hydrogen ions उस region में है, जिस भी region का हम pH निकाल रहे हैं. The greater the hydrogen ions, the lower the pH. इसीलिए acids में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और alkali में प्रोटॉन्स कम होते हैं. So more hydrogen ions, lesser the pH. So we are technically acidifying the cell wall. एक बार इस सेल वॉल का पीएच कम हो जाता है ना, इसकी वजह से द लोअरिंग इन पीएच एक्टिवेट्स दीज एक्सपेंसिव प्रोटीन्स. पहले इनएक्टिव थे, अब ये पीएच कम होने की वजह से एक्टिवेट हो गए. अब इनका काम क्या एक्टिव होने के बाद? दीज एक्टिवेटेड एक्सपेंसिव प्रोटीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं बिटवीन द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. So is that going to strengthen or is that going to weaken the cell wall? अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो सेल वॉल स्ट्रांग हो या सेल वॉल वीक होगा? Can you hear me? Sir, your voice got disconnected. I can hear you now. Could you repeat? ओके. या सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि दी एक्स सो सबसे पहले हमने ये बात की कि पीएच यहाँ पे सेल वॉल का कम हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन सेल वॉल के अंदर जा रहे हैं. इस पीएच के कम होने की वजह से ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं. कुड यू टेल मी व्हाट्स नाउ गोइंग टू हैपन टू द सेल वॉल अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? इज इट गोइंग टू वीकन और इज इट गोइंग टू स्ट्रेंथन? It weakens. It weakens. तो हमने हमारा गोल अचीव कर लिया. So H plus ions are actively transported into the cell wall, causing the cell wall to be acidified. मतलब टेक्निकली हम ये कह रहे हैं कि सेल वॉल का pH कम हो जाएगा. So pH of cell wall decreases. So what happens now is this drop in pH activates the expansion proteins. और ये एक्सपेंशन प्रोटीन्स क्या करेंगे? दीज एक्टिवेटेड वंस कि ये अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, which break the hydrogen bonds between cellulose microfibrils. ओके, बट लेट्स नॉट फॉरगेट, ऑक्सिन रिसेप्टर ने सिर्फ प्रोटॉन पंप्स को स्टिमुलेट नहीं किया था और उसको ओपन करने के लिए मजबूर नहीं किया था. ऑक्सिन रिसेप्टर ने पोटेशियम आयन चैनल्स को भी ओपन करने के लिए स्टिमुलेट किया था. सो पोटेशियम आयन चैनल्स भी ओपन कर जाते हैं. नाउ पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस हेट ईच अदर. सो इफ हाइड्रोजन आयन सेल वॉल के अंदर जा रहे हैं, पोटेशियम आयंस कहाँ जाने चाहिए? Inside. इनसाइड एज इन इनटू द साइटोप्लाज्म. Into the cytoplasm, yeah. Correct. Into the cytoplasm of the cell. Now, trick number two. Potassium ions and water molecules love each other. तो अब ये water molecules कहाँ जाएंगे? Inside the cell or outside? Inside. Inside. And this second trick also makes kind of sense. क्योंकि जब potassium ions अंदर जाएंगे तो इस cytoplasm का water potential तो कम हो गया. Now osmotic movement होगी through these aquaporins जो कि water के लिए channel proteins हैं. तो ये अलाउ करेंगे वाटर को ऑस्मोसिस के जरिए मूव करने का. दिस इज व्हाई वी से कि पोटेशियम आयंस इन वाटर लव ईच अदर. अच्छा, वाटर अब अंदर मूव कर गया. नाउ इफ वाटर मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म, is the cell going to be turgid or is the cell going to be flaccid? Turgid. टर्जिड, जिसकी वजह से जब सेल टर्जिड होता है नॉर्मल सिचुएशंस में भी तो क्या होता है कि सेल वॉल स्ट्रेच होता है क्योंकि वैक्यूल का टर्गर प्रेशर लगता है सेल वॉल पे. द सेम थिंग इज गोना हैपन हियर. वैक्यूल का टर्गर प्रेशर अब सेल वॉल पे लगेगा, बट नाउ सेल वॉल को तो हम वीकन कर चुके थे, तो इसकी वजह से सेल वॉल अब स्ट्रेच हो जाएगा एंड इट विल नॉट मेंटेन इट्स ओरिजिनल लेंथ.
वो मेंटेन करता है अपनी ओरिजिनल लेंथ अगर हम उसको वीकन नहीं करते तो। सो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप नंबर 4 में K plus ions and water molecules rushes into the cytoplasm, or you could say cytosol, causing the turgor pressure or resulting in the turgor pressure applied on the cell wall, और इसकी वजह से cell wall stretch हो जाता है। एंड हमारा फाइनल स्टेप कि प्लांट सेल इवेंचुअली एलोंगेट कर जाता है। फिर बाद में वो सारे प्रोसेसेस आते हैं कि सेल वॉल फिर वापस से रिप्लेस होता है, स्ट्रेंथन होता है, वो रिवर्स प्रोसेस एक शुरू होता है। वी डोंट नीड टू नो दैट बिकॉज ऑल यू नीड टू नो फॉर दिस टॉपिक इज ऑक्सिन सेल एलोंगेशन कैसे कैसे करता है। जैसे समरी, पहले वो ऑक्सिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को, प्रोटॉन पंप्स जो कि ओपन होते हैं और पोटेशियम आयंस। The opening of the proton pumps causes the acidification of the cell wall. अब ये पीएच जब सेल वॉल का गिरेगा तो ये एक्सपेंशन प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे विच वर बिटवीन द माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे सेल वॉल वीकन होगा। एट द सेम टाइम, एट द सेम एग्जैक्ट टाइम जब ये सब potassium ions and water move inside the cytosol, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर अब इस वीकेंड सेल वॉल पे लगेगा, causing the cell wall to stretch और प्लांट सेल की elongation हो जाएगी। So is this पूरा टॉपिक क्लियर, ऑक्सिन एंड स्टेम elongation? Yeah, it's clear. ओके, अब बात करते हैं अबाउट गिबरेलिंस एंड स्टेम elongation। कि ऑक्सिन का रिलेशन तो हमने देख लिया कि वो कैसे स्टेम को इलोंगेट या लेट्स से सेल को इलोंगेट, टेक्निकली सेल इलोंगेशन है व्हिच लीड्स टू स्टेम इलोंगेशन, वो कैसे करता है। गिबरेलिंस का तरीका कुछ और है, इट हैज अ डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम राइट हियर। हमने एक्सपेंशन प्रोटीन्स पढ़ लिया कि व्हाट एसेंशियली आर दे, और हमने फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया। व्हाट वी डिडंट टॉक अबाउट वाज हेमीसेलुलोज एंड एक्सईटी एंजाइम। वो अब यहाँ पे यूज होगा। गिबरेलिंस क्या करेंगे कि इट विल कॉज द एक्सईटी एंजाइम्स टू एक्टिवेट। गिबरेलिंस का कोई रिसेप्टर, यू डोंट हैव टू नो ऑल ऑफ दैट, यू जस्ट हैव टू राइट कि जो गिबरेलिंस हैं दे विल कॉज द एक्सईटी एंजाइम टू एक्टिवेट। एक बार ये एक्सईटी एंजाइम एक्टिवेट हो गया, इस एंजाइम के एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट है कौन। इस एंजाइम के एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट है हेमीसेलुलोज। सो यू सी दी स्ट्रक्चर्स राइट हियर, दिस एंड दिस, दीज आर हेमीसेलुलोजेस। इनकी, और दिस यू कुड आल्सो कॉल दिस वन कंप्लीट हेमीसेलुलोज। एक्सईटी एंजाइम इन हेमीसेलुलोज के बीच में बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। सो यू रिमेंबर there were two things which were keeping the microfibrils together or the cell wall together: hydrogen bonds and hemicellulose. Hydrogen bonds तोड़े expansion ने with the help of auxin की stimulation। गिबरेलिंस कॉज करते हैं एक्सीटी एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए जो कि इन हेमीसेलुलोज के बीच में बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। सो which breaks द बॉन्ड बिटवीन हेमीसेलुलोज। अच्छा, एक बार ये हेमीसेलुलोज के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिर द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन कि सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स अब फर्दर अपार्ट मूव करेंगे। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस कि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तो ब्रेक ही नहीं किया, वो तो ऑक्सिन कर रहा है ना। ऑल वी नीड टू वरी अबाउट इज हेमीसेलुलोज को कैसे ब्रेक करें। तो उसके लिए एक्सीटी एंजाइम को गिबरेलिंस ने स्टिमुलेट या एक्टिवेट व्हाटएवर वो किया था। So again, this causes the cellulose microfibrils
to move apart, which eventually causes the expansion of the cell wall और cell elongation हो जाती है। तो ये तो बहुत एक छोटा सा टॉपिक था 2 लाइनों का कि it's just 2 steps. XCT enzyme activate, XCT breaks the bonds, and the cellulose microfibrils move apart. That's it. Elongation. एक second, we can change the wordings up here. So leading to cell wall expanding, और जब cell wall expand करेगा उसकी वजह से cell की elongation होगी. So do you have any questions from cell की elongation? Anything? No, it's clear. ओके, अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गिबरेलिंस का एक फंक्शन हमने देख लिया। लेट्स गो बैक हियर। वेयर इज दिस? या ऑक्सिन का फंक्शन देख लिया, गिबरेलिंस का एक फंक्शन देख लिया। गिबरेलिंस का ये आखिरी फंक्शन देखते हैं विच इज सीड जर्मिनेशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, हम समझते हैं कि सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है, मतलब व्हाट एसेंशियली इज सीड जर्मिनेशन। यू वुड हैव डन सम practicals or some experiments, let's say in year 4 or year 5. Have you done those sort of experiments wherein you grow a plant in the dark inside a cupboard, the seed germination वाला experiment in school? Yeah. Yes, तो ये normally हर स्कूल में किया जाता है in smaller classes. This is seed germination. Seed germination का मतलब ये है कि when the seed is around और inside of the soil, तो सीड के अंदर का जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो let me write this here. सीड जर्मिनेशन, या हम कहते हैं कि सीड जर्मिनेट कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि when the seed is around, or let's say close to, or inside the soil, the embryo starts to develop. और जब ये एम्ब्रायो डेवलप करता है, दिस लाइन राइट है, ये हम कहते हैं कि अच्छा अब सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गई। तो इसमें गिबरेलिंस का क्या हाथ है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गिबरेलिंस इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट अ सीड एसेंशियली लुक्स लाइक। आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट टू ड्रॉ इट राइट है। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। जस्ट ओके, अब हम इसका डबल लेयर बनाते हैं। Right here. Now let's use a different color. Okay. Okay. This is what a seed essentially looks like. सबसे पहले तो these ball or these group of cells right here, this is the embryo. तो जब हम बोलते हैं embryo डेवलप होना शुरू करता है, मतलब इसकी साइज बढ़ना शुरू होती है। You see these layer of cells जो मैंने बनाए? So you have this layer of cells and Yeah. this one. तो ये जो मैंने रेड लाइन से बनाई है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस एंटायर थिंग, इस लेयर ऑफ सेल्स का एक नाम है, एंड दिस इज कॉल्ड द एल्यूरॉन लेयर। इसकी स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ALEURONE, एल्यूरॉन लेयर। और अभी ये काम भी आने वाला है कि एल्यूरॉन लेयर क्या सीड जर्मिनेशन में क्या काम है। दिस थिंग राइट हियर इज अ स्टार्च ग्रैन्यूल, so small or a simple starch granule. अगर हमें सीड को जर्मिनेट करवाना है, एम्ब्रायो को डेवलप करवाना है, एम्ब्रायो को ग्रो करवाना है या सीड को ग्रो करवाना है, डोंट यू थिंक हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? Yeah, we will. एनर्जी की जरूरत इस एम्ब्रायो को पड़ेगी। टेक्निकली मतलब इसका कि ग्लूकोज की जरूरत इस एम्ब्रायो को पड़ेगी।
If the embryo needs glucose and you have starch here, could you figure out a way कि starch से glucose कैसे आ सकता है? Breaking down starch to amylase, I think, and then to glucose. So you're saying breaking down starch to amylase? Yeah. Wouldn't amylase break down starch? Oh, yeah, sorry. So जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज एंजाइम होता है। दिस इज वेरी कॉमन एंजाइम जो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टार्च ब्रेक डाउन होगा माल्टोज में। माल्टोज फिर यूज अप होगा बाय माल्टेज एज इन द एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज। सो लेट मी राइट दिस डाउन हियर। स्टार्च breaks down into maltose and then maltose breaks down into glucose. For this, you need amylase, and obviously for this, you need maltase. So, सबसे पहला काम जो हमें करना है is to figure out हम यहाँ पे इस seed में amylase कैसे produce करेंगे. This is where the gibberellins come in. तो these are a few steps which you have to remember, which will essentially lead to कि हमारे पास ग्लूकोज आ जाएगा और ये ग्लूकोज एम्ब्रायो यूज अप कर लेगा। सबसे पहले, so, in the experiment which you did while you were in a smaller class, did you give water to that seed or that small plant? जो seed germination का experiment था? Do you remember? Yeah, I think. We did give water क्योंकि हमने अभी क्या बात की कि if the seed is around or inside the soil, अगर seed soil के अंदर होता है वहां से वो water absorb करता है। अगर हम खुद से experiment कर रहे होते हैं तो हम उसको water देते हैं। The first step is कि water की uptake होती है into the seed. So H2O moves into the seed. In other words, uptake into the seed. एक बार so always remember these three topics: auxin stem elongation, gibberellin stem elongation, gibberellin seed germination. Remember it like a story, all of these steps. तो water अब seed में uptake कर जाता है। As soon as water moves inside this seed, ये water अब embryo use up करता है और उसको use करने के बाद it releases gibberellins. This is where the gibberellins come from, the embryo. So the embryo releases gibberellins. कब रिलीज करता है गिबरेलिंस? आफ्टर टेकिंग इन वाटर। अब एक बार गिबरेलिंस इस रीजन इस स्पेस में आ गए इनसाइड द सीड, ये गिबरेलिंस फिर इस एल्यूरोन लेयर में जाके डिफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया? वाटर अपटेक इनटू दिस सीड राइट हियर, जहां पे एम्ब्रायो उसको यूज अप करेगा। इसके what do you call it? In place of that, or after that, it releases gibberellins. These gibberellins diffuse to the alluron layer. अच्छा, अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। जब ये एल्यूरोन लेयर के अंदर होता है ना ये गिबरेलिंस, तो देर इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स, देर इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स, मेनी मेनी स्ट्रक्चर्स एंड मेनी मेनी रिएक्शंस व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, बट नॉट इन दिस चैप्टर। यू विल डू दैट व्हेन वी विल टॉक अबाउट चैप्टर 19, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। वहां पे ये काम आएगा, or this is things which are happening inside of the aileron layer. But for this chapter, all you need to remember is gibberellins diffuse into the aileron layer और वहां पे ये amylase synthesize होता है by this aileron layer with the help of gibberellins. अब gibberellins कैसे ये करते हैं, मतलब technically aileron layer के अंदर क्या हो रहा होता है? All of this we'll do this in chapter 19. Okay, so amylase is then synthesized by the alluron layer। एक बार एमाइलेज सिंथेसाइज हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द एल्यूरोन लेयर और यहाँ पे आके इस स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है इनटू माल्टोज एंड देन माल्टोज गोज इनटू
glucose. So does this process make sense? Yeah, it does. Right, so let me just complete writing this down. Amylase catalyzes the breakdown of histone. Sir, in school we've Yeah, also learned about the DELA proteins and everything. Is that included? यस ये मैं कह रहा था कि एल्यूरोन लेयर के अंदर ये डेला प्रोटीन्स, ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन और एमाइलेज को बनाना, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर चैप्टर 19। तो उसमें ही हम इसके बारे में बात करें क्योंकि अभी इट्स सच अ बिग टॉपिक कि दिस विल टेक अप आई थिंक 2 क्लासेस। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एल्यूरोन लेयर के अंदर क्या होते हैं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर चैप्टर 19, सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज इन द सिलेबस। Okay, so let's just revise this. Water uptake into the seed. Embryo is water को take in करता है, because of which it releases gibberellins. They diffuse into the alluron layer. Alluron layer में क्या होता है? That's a secret for now. और फिर यहाँ alluron layer में जब gibberellins जाते हैं, that is when amylase is synthesized. It diffuses out of the alluron layer. यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्यूल को कैटालाइज करता है इसकी ब्रेकडाउन, जिसमें माल्टोज में ब्रेकडाउन करता है। माल्टेज पे ब्रेक्स डाउन माल्टोज इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही एम्ब्रायो यूज करके डेवलप करता है, एंड दिस इज व्हेन वी से कि सीड इज जर्मिनेटिंग। सो दैट इज इट फॉर चैप्टर 15। अब हमारी जो अगली क्लास है संडे को, उसमें इफ वी कैन हैव अ टेस्ट फॉर चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, वुड यू बी रेडी फॉर दैट इन टाइम? संडे को जो हमारी क्लास है उसमें इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 टेस्ट, बिकॉज we're done with chapter 15. Sir, about that, I wanted to talk. Like, is it possible if you could shift the vacation a bit earlier? Because I might be going somewhere, like from Saturday, so it might be difficult for me to attend classes. So I'll be Right, back so in a week. Yeah. the thing is कि even I am going on holiday from 1st to 9th January, तभी मैंने उस वक्त रखा था ताकि हमारी classes उस वक्त waste ना हो, because I wouldn't be able to take them there, इसीलिए। So Acha, so when did you give the vacations? Like, could you remind me of the date? I forgot. yeah, 1st January से लेके 9th January तक, so we'll start from 10th of January। और ऑल्सो ये जो अगली हमारी क्लास है उसमें तो नॉर्मली हम टेस्ट जो करते हैं वो ऑफलाइन करते हैं, राइट? सो जस्ट कंप्लीट द टेस्ट, there's no need to join the class, you can complete it whenever you want। एंड फिर जो अगली क्लास हमारी होगी, that will be the last class before the weekend, Tuesday। Okay. That's just one class, and then the next will be on 10th of January। Right. इसीलिए So मैं चाह रहा था कि yeah, I'll confirm with my father and then I'll tell you. Acha, about the Alright, test, yeah, I can give it on Sunday. right, perfect। तो मैं उसी वो क्लास के टाइम पे भेज दूंगा। If you would be outside, to be honest, let me just once you complete it, just send it to me on WhatsApp, I'll check it, and then we'll do Tuesday, just confirm with your dad and Sir, could you give it tomorrow, the test, if it's possible? yeah, हम संडे की क्लास कल शिफ्ट कर देंगे सैटरडे पर, in case of that I can do that, sure। Yeah, like by 9 p.m. you can upload it. I'll just do it and then I'll submit it. Right, so कल 9 p.m, right? Yeah, it's fine. Right, perfect, okay, कोई मसला नहीं। Right, Right, thank you so much. thank you, Allah Hafiz।